السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کو آن لائن کلاس میں پھر ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں پارٹ 3 میں کثیر رکنی کے صفر ترسیم کے ذریعے کثیر رکنی کے صفروں کی تعداد کتنی ہے معلوم کیا گیا ہے۔ اب پارٹ 4 کے اندر پارٹ 4 کلاس میں جو نیا ٹاپک ہے کثیر رکنی کے صفر اور ضریبوں کے درمیان تعلق کے لحاظ سے مطالعہ کیا جائے گا۔ جیسا پچھلی کلاس میں مطالعہ کیا گیا تھا خطئی کثیر رکنی، جس کی معیاری شکل تھی ax جمع b، جہاں a is not equal to 0 تھا۔ ax جمع b جہاں a is not equal to 0 ایک خطئی کثیر رکنی کی معیاری شکل ہے۔ اگر ایک خطئی کثیر رکنی کی اگر ہم مثال لیں گے p of x برابر x نفی 10 ہے، اس کثیر رکنی کے صفر اگر معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں x کی قیمت کیا لے سکتے ہیں؟ 10 لے سکتے ہیں۔ جب اس کے اندر 10 قیمت بھرنے پر x کی جگہ میں 10 بھرنے پر 10 نفی 10 یعنی p of 10 برابر 10 میں سے 10 لے تو کتنا ہوتے آنسر صفر حاصل ہوا، یعنی اس کثیر رکنی کے صفر کیا ہے 10 ہے۔ کیوں بولے تو اس کثیر رکنی کی قیمت کتنی آ رہی ہے؟ صفر ہے۔ اس کے لحاظ سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ اگر دوسری اور ایک مثال پر اگر غور کریں گے، ایک پہلی مثال ہے، ایک دوسری مثال ہے p of x برابر 3x نفی 5 ہے۔ یہ بھی ایک خطئی کثیر رکنی ہے۔ اگر اس کے صفر کو معلوم کرنا ہے، جیسا میں x برابر 1 بھر لے، اگر اسے سولو کر لے تو اس کی آنسر آتے کتنا؟ جواب اس کا نفی 2 حاصل ہوتا ہے۔ اگر 2 بھر لے تو آنسر اس کا کتنا حاصل ہو سکتا ہے؟ مختصراً سولو کر لینے کے بعد میں 1 حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کون سی قیمت اس کثیر رکنی میں بھرنے پر اس کثیر رکنی کی صفر کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسے اعداد ہیں جو مکمل طور پر ہیں تو آسانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھر کو اس کثیر رکنی کی قیمت کو صفر حاصل کر لے سکتے ہیں۔ لیکن چند ایسے واقعات بھی یا موقع ہو سکتے ہیں کہ چند متغیر کے اعداد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ کسر کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں x کی قیمت کون سی لینے پر اس کی قیمت کثیر رکنی کی قیمت صفر آتی ہے بولے تو 3/5 لینے پر 3/5۔ جیسا اس کو اگر ہمیں حل کر لیں گے، x برابر 3/5 ہے، therefore here instead of x we put here 3/5, keep as it is 3 in bracket 3/5 again here minus نفی 5 کا نفی 5 ہے۔ نیکسٹ سوری 3/5 کی بجائے میں 5/3 3/5 کی بجائے کیا ہے 5/3 اگر 3 لے تو ویلیو کیا ہوگی؟ تو 3/5 کی بجائے 5/3 تو یہ 3 کیا ہوا؟ کینسل ہوا، تو بچا عدد کیا ہے؟ دیکھو 5 ہے، پھر ریمیننگ عدد کیا ہوا؟ 5 ہے، تو آنسر کیا ہو سکتے پھر یہاں صفر ہوا۔ لیکن ہم اگر ہمیں راست طور پر دیکھیں گے تو ہمارے دماغ میں کسر کی حالت میں اعداد جو ہیں وہ نہیں آ سکتے۔ تو ایسے کسر کے اندر اگر اعداد رہے تو اس کو کیسے معلوم کر لے سکتے ہیں؟ ایک سمپل ایک چھوٹا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جیسا معیاری شکل کیا ہے ax، جیسا خطئی کثیر رکنی کی معیاری شکل ہے ax جمع b ہے، جہاں a is not equal to 0 ہے۔ اب اس کے کثیر رکنی کے صفر ہمیں معلوم کرنا ہے جو بٹے کی حالت میں آنے کے چانسز رہتے ہیں، جو آسانی طور پر ہم نہیں مل سکتے۔ آسانی طور پر ملنا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ راست طور پر اس کے اندر پر کرتے ہوئے بھرتے ہوئے اس کی کثیر رکنی کی قیمت کو معلوم کر سکتے۔ اگر سمجھو کسر کی حالت میں آ رہے ہیں
तो वहाँ थोड़ा मालूम करना मुश्किल होते। तो वैसे सिचुएशंस में हमें क्या करना होगा, दिए गए कसीर रुकनी को क्या कर लेना, ax जमा b बराबर क्या कर ले सकते हैं, सिफर कर ले लो। इसकी कीमत सिफर है कर लेना पहला। ax जमा b जब बराबर के उधर सीधे तरफ जाते हैं या दाएं तरफ जाने के बाद में जमा b निकल कर क्या होते हैं, अलामत बदलती है, नफी b होते। x की कीमत को हमें मालूम करना है, तो x बराबर कितना हुआ, नफी b बटे हुआ। यानी x की कीमत इस कसीर रुकनी में क्या भरना है, डायरेक्ट रास्त तौर पर नफी b बटे a भर लेना। जैसा ये एग्जांपल, इसे हम ऐसे मुआवजा कर सकते हैं तरीके को, कसीर रुकनी के सिफर कैसा मालूम करना है। जैसा ये एग्जांपल लेंगे अभी, जैसा p ऑफ x लेते, 3x नफी 5 रहा था, बटे की हालत में रास्त तौर पर नहीं मालूम हो सकता, तो तरीका क्या लेना हमें, जैसा है क्या लेते, सिफर लेते, तो 3x नफी 5 बराबर, यहाँ बाजू में सॉल्व कर ले थोड़ा, 3x नफी 5 बराबर सिफर लो, x की कीमत अब मालूम कर लो, 3x बराबर नफी 5 जब उधर जाते तो कितना होते, जमा 5 हुआ, तो x बराबर 5 एज इट इज, ये 3 इसके साथ दरब की हालत में है, तो नीचे क्या तो कहां जाते, बटे की हालत में, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 5 बटे 3। अब ये कीमत इसके अंदर भरने पर, जैसा p of instead of x, again we put the value here, that is 5 upon 3, here 3 is already here, next the value of x is 5 upon 3, the remaining term is minus 5. Therefore p of 5 upon 3 is equal to this 3 and this 3 is cancel each other because they are in a form of fractions, that's why the remaining जो बाकी अदद है 5 नफी 5 है, तो p of 5 बटे 3 कितना हुआ, 5 में से 5 गए तो सिफर हुआ। यानी किसी भी खतई कसीर रुकनी को इक्वल टू से क्या लेना, मसावी, सिफर के मसावी लेते हुए x की कीमत मालूम कर लो। अगर वो मालूम की गई x की कीमत दिए गए कसीर रुकनी में भरने पर उसकी कीमत क्या हासिल हो सकती है, सिफर हासिल हो सकती है। ये जो तरीका है तमाम खतई कसीर रुकनी को इस्तेमाल कर ले सकते हैं, तमाम खतई कसीर जितने भी खतई हुए, जैसा ये एग्जांपल है इसे भी हमें ले सकते हैं, जैसा x नफी 10 बराबर सिफर लो, तो नफी 10 जब उधर गया तो जमा 10 होते, तो ऑलरेडी हमें मालूम था कौन सी अदद सिफर ले, कौन सी अदद पुर करने पर सिफर आती है, रास्त तौर पर मालूम था, इसीलिए हम ये तरीका अपनाए नहीं थे, लेकिन ये तरीका इसे भी लगा सकते हैं। जैसा x की वैल्यू फिर यहाँ कितनी है, 10 है, तो 10 भर ली, तो इसकी भी कीमत कितनी हासिल हो लगी, यहाँ उस कसीर रुकनी की कीमत सिफर हासिल भी है। तो यानी तमाम कतई कसीर रुकनी को इस तरीके से उस कसीर रुकनी के सिफर को मालूम किया जा सकता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x -b अपॉन a ले सकते। ये तो खतई कसीर रुकनी के लिहाज से था। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो बोले तो कसीर रुकनी के सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक है। कसीर रुकनी के सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक के लिहाज से मुताला करने का है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुरब्बई कसीर रुकनी ले, हमें एक मुरब्बई कसीर रुकनी लेंगे, जैसा p ऑफ x इज इक्वल टू, एक मुरब्बई कसीर रुकनी को फर्ज कीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर नफी 8x जमा 6 है। एक p ऑफ x है, 2x स्क्वायर नफी 8x जमा 6 है, एक मुरब्बई कसीर रुकनी है। इसके सिफर कैसा मालूम कर लेना, हालांकि खतई कसीर रुकनी का तो पता है, अब मुरब्बई कसीर रुकनी को कैसा मालूम कर लेना, जैसा अब देखो 2x स्क्वायर नफी 8x जमा 6 कसीर रुकनी है। तुमने ऑलरेडी क्या है 8th की क्लास के अंदर मुताला किए कि किसी भी दो दर्जी मसावात के अगर जजूर मालूम करना है तो वहां पर एक तरीका इस्तेमाल किया गया था। वो तरीका कौन सा है बोले तो अज़ाए ज़रबी का तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड। वो सेम तरीका यहाँ अप्लाई करनी, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल करनी। कैसा इसके सिफर मालूम करना है, देखो
यहाँ अदद जमा है, दो के पीछे भी कुछ भी अदद नहीं रहे तो जमा रहती है, तो पहले अलामत को ज़रब देना, जमा ज़रब जमा क्या होते हैं, जमा हुआ। मुस्तकल अदद 6 है, x स्क्वायर का जो अददी सर है 2 है, तो इसे ज़रब देना, 6 2 12 हुआ, तो पूरा मुकम्मल अदद कितना हुआ यहाँ पर 12 हुआ। x का कोएफिशिएंट जो कितना है, जमा रहा तो जमा लो, नफी रहा तो नफी लो, यहाँ कितना है नफी 8, यानी यहाँ पर जो जमा 12 हासिल होने लगे और यहाँ पर कितना है नफी 8 है। तो ऐसे दो अदाद को मुंतखब करना कि ज़रब देने पर जमा 12 हो और जमा करने पर नफी 8 हो, ज़रब देने पर जमा 12 होना और ज़रब जमा करने पर कितना होना नफी 8 होना। तो वैसे दो अदाद कौन से हैं, जैसे कौन से ले सकते हैं बहुत दरमियान, नफी 6 नफी 2 ले सकते हैं। जैसे ऐसे मुख्तसर करेंगे, नफी 6 का नफी 6, जमा ज़रब नफी नफी, जब दोनों नफी रहे तो पहला नफी रखना, बाद में अदाद को मिला लेना, तो जमा करें तो कितना अदद हासिल हो रहा है यहाँ नफी 8 हासिल हुआ। अब ज़रब देंगे इनको, नफी 6 ज़रब नफी 2, तो नफी नफी जमा हुआ, 6 2 12, तो ज़रब देने पर कितना हासिल हुआ 12 हासिल। तो दो अदाद कौन से ले सकते हैं हमें, नफी 6 नफी 2 को यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इसे लेकर सॉल्व करेंगे, देखो दरमियान की अदद को मुनकिसम कर को रख लेना, जैसा कैसे वो पहला रुकन जो है एज इट इज रख लो 2x स्क्वायर, अब इसे मुनकिसम कर लेना, कौन कौन से अदद, नफी 6x नफी 2x, लास्ट कैसा अदद है सेम एज इट इज रख लो। अब इसके अंदर दो दो की ग्रुप की जोड़ी बनाओ, पहले 2 ग्रुप की जोड़ी, बाद में 2 ग्रुप की जोड़ी, इसमें जो मुश्तरक है उसे कॉमन बाहर निकाल लेना। 2 और 6 एक ही पहाड़े के अंदर आते हैं, एक ही अदद के मुश्तरक अज़ाए ज़रबी हैं, जुज़ हैं, इसीलिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 के पहाड़े में 2 भी है 6 भी है, इसीलिए 2 कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसे भी कॉमन निकालो तो बचा क्या, देखो सिर्फ इसके अंदर 1x बचते। जमा ज़रब यहाँ जमा रहते, जमा ज़रब नफी नफी 6 आना बोल तो 2 3 2 3 6, ये तो x बाहर है हमने, तो ये ब्रैकेट को कंप्लीट कर। दूसरी मर्तबा जब यहाँ कॉमन निकालते रहते हैं तो ऐसा मुश्तरक निकालना कि ब्रैकेट में जो अदद है वो सेम अदद यहाँ पर बचना। जैसा मिसाल x है तो यहाँ क्या लेना है, मुकम्मल तौर पर अदद लेना, नफी 2 मुश्तरक निकालो, नफी नफी यहाँ पर जमा हुआ, नफी 2 बाहर है, पूरा बचा अदद क्या x है, नफी ज़रब जमा नफी है, 2 को कितने से ज़रब देने पर हासिल होते हैं 3 से ज़रब देते हैं, यानी 2 3 6 हुआ, यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 हुआ, तो इसे कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 तो बचा अदद कौन सा है 2x नफी 2 है, तो x माइनस 3 2x नफी 2, ये दो अलग अलग अपना जुज़ हासिल है। यहाँ कसीर रुकनी की कीमत की कदर क्या होगी, क्या होगी सिफर होगी, कि बोलते हम ना कसीर रुकनी के सिफर मालूम करने का है, तो इसकी वजह से कसीर रुकनी की कीमत या कदर सिफर होगी, इसके लिहाज से इसलिए क्या ले सकते हैं, मैं दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 ले सकते हैं। कैसा, x नफी 3 बराबर सिफर या 2x नफी 2 बराबर सिफर कब लेने आते हैं, दिए गए कसीर रुकनी की कदर अगर सिफर होगी, कीमत सिफर है तो हम ये दोनों को क्या ले सकते हैं इक्वल टू 0 बना ले सकते हैं। तो x बराबर नफी 3 अगर उधर गया तो जमा 3 होते, या 2x नफी 2 उधर गया तो कितना होते जमा 2 हुआ, तो x बराबर यहाँ 2 का 2 है, ज़रब की हालत में इधर आया तो बटे की हालत में 2 1 2 2 1 2 1 बटे 1 तो आंसर कितना हुआ 1 हुआ, यानी एक x की कीमत 3 है और एक x की कीमत क्या है 1 है, ये दोनों क्या ही बोले तो दिए गए मुरब्बई कसीर रुकनी के सिफर हैं करके बोल सकते हैं। तो मैं घर में चेक कर ले सकते हैं, क्या बोल के x की कीमत 1 भर के देखो, इसकी कीमत सिफर हासिल होती है, x की कीमत 3 भर के देखो तब भी इसकी कीमत क्या होती है सिफर हासिल होती है। तो ये दिए गए कसीर रुकनी के क्या हैं सिफर हैं, लेकिन टॉपिक की लिहाज से क्या है कसीर रुकनी के सिफर ऑलरेडी मालूम है, ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक को देखने के, ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक कैसा है देखो, जैसा मिसाल के यहाँ पर एक अगर इसका आगे का टॉपिक देखेंगे, कसीर सिफरों का हासिल जवाब के लिए
सीफरों का हासिले जमा, यानी हासिले जमा कितना हासिल है, देखो एक 3 है, एक है, दोनों को मिलाओ 3 जमा 1 की होता है, क्या लिखे यहाँ सीफरों का हासिले जमा, कसी रुकनी के सीफरों का हासिले जमा 3 जमा 1 कितना आंसर है 4 हासिल हुआ। इज इक्वल टू, यहाँ क्या ले सकते हो, पहला क्या लेना नफी लेना, ये किसके मसाइल थे नफी, यहाँ किसका अददी सर लेंगे x का अददी सर लेना, कितना x का अददी सर यहाँ नफी 8 है, रख लो यहाँ पर डायरेक्ट, बटे x स्क्वायर का अददी सर रख लो कितना है 2 है, तो इसे कैलकुलेशन करनी है, नफी नफी जमा हुआ, बचा अदद क्या है 8 है, बटे 2 कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 2 4, तो 4 बटे 1 तो आंसर कितना मिला ना 4 हुआ, तो यहाँ भी कितना है तो आंसर 4 है। तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो हमें यहाँ नफी 8 किसका है, किसका अददी सर है x का है, तो x का लिखेंगे, x का अददी सर, x का अददी सर बटे 2 क्या है, किसका अददी सर है x स्क्वायर का है, तो इसे क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का अददी सर बोल के लिख सकते हैं, x स्क्वायर का अददी सर, यानी सीफरों का हासिले जमा किसके मसावी हो सकते करके तस्दीक कर रहे हैं हमें, नफी x का अददी सर बटे x स्क्वायर का अददी सर। अगर इसे हमें अल्फाबेटिकली लिखे तो इसकी मियारी शक्ल क्या है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c है, यानी इज इक्वल टू क्या लिखने को नफी का नफी रखो x का अददी सर बोले तो x का अददी सर क्या है b है, तो b रख लो। नेक्स्ट x स्क्वायर का अददी सर है, x स्क्वायर का अददी सर है तो कितना है x स्क्वायर का अददी सर a है, यानी सीफरों का हासिले जमा एग्जैक्ट अगर हुरूफ के हिसाब से ले तो किसके मसावी होते हैं नफी b बटे a के मसावी होता है। तस्दीक कर रहे हैं मैं ऑलरेडी, क्यों रहे, यहाँ भी आंसर 4 है, तो यहाँ भी आंसर कितना है हमारा 4। और इसमें क्या ले सकते हो, सीफरों का हासिले ज़रब, सीफरों का हासिले ज़रब, दोनों का ज़रब दिए तो अभी तक 3 ज़रब 1, तो 3 कितना हुआ 3 हुआ। एक इसके एक और रख ले सकता हूं मैं, यहाँ का मुस्तकिल अदद ले दूं 6, फिर x स्क्वायर का अददी सर ले दूं 2, इसे कैलकुलेशन मुख्तसर कर ले तो 2 1 2 2 3 6, 3 बटे 1 बोले तो आंसर फिर कितना हुआ 3 हुआ। तो ये 6 जो है ये क्या है, ये मुस्तकिल अदद है, तो हमें लिख लेंगे क्या बोल के मुस्तकिल अदद बटे 2 क्या है x स्क्वायर का अददी सर है, x स्क्वायर का अददी सर है। तो हमें अल्फाबेटिकली हुरूफ के हिसाब से देखें तो कैसा लिख ले सकते हैं, मुस्तकिल अदद को क्या है, मुस्तकिल अदद में c है, c बटे x स्क्वायर का अददी सर फिर क्या है a है, तो ये किसके मसावी हुआ, सीफरों का हासिले ज़रब किसके मसावी हुआ c बटे a के की मसावी होने लगे। यहाँ भी आंसर 3 है, यहाँ भी आंसर जवाब देता है हमारा 3 है, तो ये दोनों क्या है आपस में मसावी हैं। तो हमें एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एक नतीजा क्या निकाल सकते हैं, कभी भी मुरब्बई कसी रुकनी के सीफरों का हासिले जमा किसके मसावी होते, नफी b बटे a के मसावी होते, साथ ही साथ सीफरों का हासिले ज़रब किसके मसावी होते, c बटे a के मसावी होता है, बोल ले सकते हैं। तो सीफरों का हासिले जमा नफी b बटे a और सीफरों का हासिले ज़रब c बटे a, ये ताल्लुक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये रिलेशन भी 1 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, सीफरों का हासिले जमा किसके मसावी है, सीफरों का हासिले ज़रब किसके मसावी है। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर प्रॉब्लम्स 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पूछने के चांसेस हैं। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है तस्दीक करने का पूछते थे एग्जाम के अंदर, सीफरों का हासिल जमा उसके ऊपर तस्दीक उनके अददी सर की तस्दीक करके बताना है। ये 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आने वाला क्वेश्चंस है,
इंशाल्लाह ये नेक्स्ट की क्लास के अंदर इसके ऊपर मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक दो तीन प्रॉब्लम्स जैसा मैं तुम्हारा आने वाला एक्सरसाइज है मश्क नंबर 9.2 के अंदर भी एक चंद एग्जांपल्स हैं, वो हमें आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मुताल्ला करेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्या है, इसके लिहाज से जो बेसिक है ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर इसके ऊपर मसाइल देखेंगे। और साथ ही साथ ये अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, जहाँ भी तुम्हारे कलीग्स फ्रेंड्स हैं जिसको इसे इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो सकते वहाँ पर शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।